Hello students, welcome back to BN by IAS. Welcome to this NCERT premium course in which we are discussing environment module. If you remember, in the last session we discussed this particular chapter, that is the air, where we have seen the composition of the air. मतलब एयर में different एलिमेंट्स का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है. Then we have seen the structure of the atmosphere, जहाँ पर हमने different layers of the atmosphere के बारे में कवर किया था. Then we have also seen a miscellaneous concept called greenhouse effect, right? इनसे related सारे air से related सारी चीज़ें देखा है. And if you remember, see, I told you environment and geography, both of them are closely linked. And in the 6th class of geography, वहाँ पर हमने देखा है there are major domains of the earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere, then biosphere, right? इसी तरीके से यहाँ पर chapters भी आपको मिल रहे हैं. देखो, this entire thing, earth and changing earth, this is related to the lithosphere, where we have seen different landforms on the earth. Then we have seen this atmosphere. See, air is nothing but atmosphere, right? The blanket of the air surrounding the earth is called atmosphere. Now look at what we are going to discuss. We are going to discuss chapter number 5, that is water. So all this water together we call it as hydrosphere. Hydro का मतलब water. So that's what we are going to look at this particular lecture. See, to begin with, in our solar system, earth is special because it is in the habitable zone, जिसको Goldilocks zone कहते हैं. And within this zone, it has those conditions where there is availability of the water in the liquid form. Now this water, अगर आप lower class में if you remember, अर्थ का पूरा surface लेते हैं, उसमें से almost 79% जो है, this is covered with water, and only 21% is the land portion. Continents जो है वो सिर्फ 21% है. See, in fact, this is the reason why when we look at earth from the space, it appears blue because of the scattering and reflection of these waters, oceanic waters. That's the reason why in our solar system, this earth we call it as blue planet, right? Blue planet कहते हैं. Now in this blue planet there is extensive amount of water, and please remember, कोई भी matter जो होता है, it is neither created nor destroyed. There is a conservation of the matter. अब यहाँ पर जितना भी water है, see, it only changes form from one phase to another phase. Be it solid to liquid, liquid to gas, और gas to liquid, liquid to solid. इस तरीके से वो phases को change करता है, but quantity जो है that remains the same. Now within this entire quantity of the water, see, all this water we are calling it as hydrosphere, that we have seen it earlier. Now within this hydrosphere, जो water है that varies from different forms, like one form to another form, like solid. For example, see, यहाँ पर these are the mountains are glaciers. What is a glacier? Lower class में पढ़ा था, 6th class में. Any mountain covered with frozen snow is called a glacier, right? So glaciers में जो ice होता है या snow होता है, this is solid. And when ये melt होकर आएगा या बारिश होकर आएगा, that will be in the liquid form, that is water. Now all this water, be it in solid or liquid form, when it gets evaporated, or if it is sent to the atmosphere through transpiration of the plants, or even by respiration of the animals, what happens during this time? There is conversion of water into water vapor. So water vapor is gas. Water vapor is gas.
Now this water vapor, when it is in the atmosphere, it will condense to form the clouds, and these clouds under suitable conditions, they are going to give us the rainfall or snowfall. This is called precipitation. Now these processes ke through, what is happening, the water is changing its form from one to another and it is moving in a cyclical manner. ऐसे एक cyclical manner पे move कर रहा है. So this cyclical movement of the water from one form to another through oceans or between oceans and atmosphere and land is known as water cycle. It is also sometimes referred as हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. क्या कहते हैं, वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. क्लियर, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. मोस्ट ऑफ यू नो दिस, जस्ट थोड़ा सा एलॉबरेशन पे कवर किया था हमने, एलॉबरेटेड मैनर पे. नाउ वन मोर थिंग, जैसे हम एनसीईआरटी जब कवर कर रहे हैं वहाँ पर जो भी फन फैक्ट्स होते हैं या डू यू नो फैक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं. सी यहाँ पर एक फन फैक्ट दिया है या डू यू नो फैक्ट दिया है, दैट इज ग्लोसरी में टेरेरियम. सी मोस्ट ऑफ अस आर फेमिलियर विद द वर्ड aquarium. Aqua means water, so aquarium is what? An enclosure with the water where we keep some aquatic animals, right? Be it fishes or let's say turtles or some seaweed or aquatic plants, इन सबको रखते हैं. Most of you might have seen it or some of you might be having it in your homes. So that is called an aquarium, क्योंकि यहाँ पर जो medium है that is aqua. Aqua का मतलब water. Now what is a terrarium? See, remember the lower class जहाँ पर हम terra का मतलब देखा है related to earth, क्योंकि सोलर सिस्टम में देखा था फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है उसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट्स, रॉकी स्ट्रक्चर है. सिमिलरली टेराकोटा इमेजेस करके बोलते हैं. टेराकोटा मीन्स बेक्ड अर्थ. सो यहाँ पर भी टेरा है, इट मीन्स रिलेटेड टू अर्थ और सॉइल. तो उस बेसिस पे बताइए, एक्वेरियम जो है इट इज एन आर्टिफिशियल एंक्लोजर विथ वाटर इन इट. Then definitely aquarium will, if aquarium is this, then terrarium will be what? It is going to be an artificial enclosure with soil, or with, let's say, it is a artificial enclosure with soil or let's say earth composition, be it organic matter or humus or so, where we keep some life, be it small plants, some organisms, उसको रखते हैं. इसको क्या कहते हैं? We call it as, yes, we call it as terrarium. Okay, so this is all about water cycle, what is a terrarium, aquarium, and some recalling of the facts related to earth. Now moving further, see, on this planet earth, like we have discussed, कितना परसेंटेज है वाटर? ऑलमोस्ट 79% वाटर है. सो एंटायर सरफेस पे लैंड का पोर्शन कम है बट वाटर इज मोर. एंड हियर सी दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ, लाइक इट इज इन द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स प्लस ओशियनिक बॉडीज, सीज एटसेट्रा. सी जितने भी वाटर अवेलेबल है उसमें majority of the portion, if you see, let's say if this is the entire ocean water or entire water in the planet earth, उसमें से देख लीजिए almost 97% के आसपास जो water है that is in oceans or saline lakes, मतलब जो water saline है. Now I am using the another word saline. What is the meaning of it? See, when we are using the word saline, it means this is the water which is with many salts. ठीक है, the most common salt जो है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl, जो हम खाने वाला नमक जो है उससे भरा हुआ वाटर. एंड उसके अलावा भी मैग्नीशियम क्लोराइड एंड अदर salts are also there. ठीक है,
सो जब ये सॉल्ट्स का कंटेंट बढ़ जाता है, वी से दैट वाटर इज सलाइन. See how we measure that? We measure that with a parameter called salinity. Salinity. So what is this salinity? Salinity measure कैसे करते हैं? See, if you take 100 grams of water, I'm not saying in liters, grams में बता रहा हूँ, मतलब 1 किलो का वाटर लेना होगा. सॉरी 1000 grams, 1 किलो मतलब 1000 grams हो गए ना. So you take 1000 grams of water. उसमें कितने grams of salts है? Let's say you have taken 1 kilo of water, उसमें आपको 20 grams का salts मिला. 1000 grams में 20 grams का salts मिला है. So then we are going to mention that as the amount of salts in grams. ठीक है? Amount of salts in grams. So if we are taking the amounts of salts in grams per 1000 grams of water, that's what we call it as salinity of the water. Salinity of the water, generally it is measured in ppt. So what is the full form of ppt? Parts per 1000, क्योंकि 1000 पार्ट्स में कितने पार्ट्स है वो मेजर कर रहे हैं ना हम, इसलिए इसको पीपीटी में मेजर करते हैं, विच मीन्स पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000. And look at this. This is the salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. That is what we have represented in the form of an equation. And generally जो average salinity of the oceans जो है that is roughly around 35 ppt. That means अगर 1000 grams of oceanic waters लेंगे उसमें कितने grams मिलेगा salts? 35 grams मिलेगा. This is the indication of it. ठीक है? So salinity concept is clear. Next एक और छोटा सा fact देखते हैं with respect to salinity. See salinity throughout the globe it's not uniform. कुछ locations पे कम है, कुछ locations पे ज़्यादा है. For example ऐसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ चलते हैं. वी हैव लाइक परमानेंट आइस जिसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं. ये परमानेंट आइस जो है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मतलब सॉलिड फॉर्म में है एंड दैट इज ए फ्रेश वाटर. वहाँ पर साल्ट का कंटेंट ज़्यादा नहीं है. सो जो भी ओशंस ये फ्रेश वाटर के आसपास है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये फ्रेश वाटर मेल्ट होकर इसमें मिलने की वजह से डेफिनेटली सैलिनिटी थोड़ा कम होगा और सिमिलरली कुछ लोकेशंस में सैलिनिटी थोड़ा ज़्यादा होगा. सो सैलिनिटी जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये डिस्ट्रीब्यूशन हम हायर क्लास में पढ़ेंगे 11th क्लास ऐसे रेंज पे. नाउ वी आर कवरिंग 7th क्लास. ठीक है. एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर मिडिल ईस्ट पे जो सी है विच इज़ कॉल्ड डेड सी. इसका नाम भी इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पर सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होता है. इट इज़ इन इज़राइल में है. यहाँ पर सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होता है. सैलिनिटी कैन गो अप टू 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ द वाटर. 340 तक भी जा सकता है. इतना जब सैलिनिटी बढ़ जाता है ऑब्वियसली उस वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा. सो वाटर का डेंसिटी जब ज़्यादा है so it is quite possible that almost all the objects जो भी है इससे कम डेंसिटी वाला उसको फ्लोट करेगा. इसलिए ये इवन स्विमर्स सी यहाँ पर लिखा है स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड साल्ट कंटेंट जो है दैट मेक्स इट डेंस. मतलब अगर आपको तैरना वेरना है मतलब तैरना सीखना है दिस प्लेस वुड बी गुड प्लेस टू बिगिन विथ. बट द प्रॉब्लम ये है कि साल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बॉडी को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाएगा. अदरवाइज इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम यू आर नॉट गोइंग टू सिंक. ठीक है. सो दिस इज अनदर फैक्ट रिलेटेड टू इट. एंड दिस वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओशंस जिसको हमने लोअर क्लास में देखा था. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, इस तरीके से 5 ओशंस हमने कवर किया था. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दिस वाटर एंड सोर्सेस.
Now coming to the distribution, we have already covered that 97% of the water जो है 97.5 भी बोल सकते हो आप, इतना परसेंट ऑफ द वाटर जो है ये है सलाइन वाटर। सलाइन का मतलब इट इज सॉल्ट बेस्ड वाटर। जो वाटर हम यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब इट विल नॉट बी यूजफुल, इट इज नॉट यूजफुल फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, सो ऐसे वाटर है। एंड रिमाइनिंग बचा हुआ जो 2.5% है दैट इज फ्रेश वाटर जो काम का है। हाउएवर उसमें से भी मेजर पोर्शन जो है दैट इज लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर। मतलब वो जो 2.5% है उसमें से भी ऑलमोस्ट 98% ऑफ द वाटर जो है दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू अस। ऑफ कोर्स नाउअडेज थोड़ा ग्राउंड वाटर को हम एक्सेस कर पा रहे हैं बोरवेल्स के थ्रू, बट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली ग्लेशियर्स में जो है, आइस कैप्स में जो है, वो भी हम एक्सेस नहीं कर पाते। सो बचा हुआ कितना है? रफली 1% ऑफ 2.5%। उसमें से भी दिस फ्रेश वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ऐसे इवन एटमॉस्फेरिक, जैसे एटमॉस्फेयर में जो वाटर का मॉइस्चर होता है वेपर, उस फॉर्म में इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। गेटिंग द पॉइंट? सो ये सरफेस वाटर में भी व्हेन वी लुक एट इट there is only a very meager amount of water which is present in rivers. So यहाँ पर देखो इसमें से परसेंटेज, इसमें से परसेंटेज इस तरीके से चल रहा है। अगर to talk it in absolute terms, if you see oceans में almost 97.3% of water है जो saline है, जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। बचा हुआ कितना? रिमाइनिंग जो भी 2.5% है उसमें 2% जो है आइस कैप्स में है। ऑलमोस्ट 0.7% जो है वो ग्राउंड वाटर हो गया। फ्रेश वाटर लेक्स जो है उसमें 0.009% बचा हुआ है एंड एटमॉस्फेयर में 0.0019%। एंड अगर रिवर्स की बात करते हैं, रिवर्स में 0.0001%। सिर्फ इतना ही है। नाउ यू कैन सी, हम रिवर्स वगैरह वाटर देखकर सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर है। इट इज़ वेरी वेरी लेस। एक्चुअली जितना भी वाटर है ना उसमें 1/1 लाख पार्ट, अगर 1 लाख यूनिट्स ऑफ वाटर है उसमें से 1 पार्ट जो है दैट इज इन द रिवर्स। गेटिंग द पॉइंट? इतना कम क्वांटिटीज में है। दैट्स मेक्स दिस वाटर से, भले ही ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल वाला है बिकॉज इट कैन रिप्लेनिश, बट because of its least availability in the surface waters which we require more, that's why nowadays it is becoming a scarce resource। इसलिए लड़ाई वगैरह भी चल रहा है वाटर के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी वाटर यूज़ करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ वेरी लिमिटेड रिसोर्स ऑन द सरफेस एंड वी हैव टू जुडिशियसली यूज इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ इट। सी, अब कुछ एग्जाम्स में, बी एट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यहाँ पर इसको अरेंज करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, या इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज दी ऑल फैक्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। एंड इसीलिए देखो वाटर इतना स्कार्स है एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग। इसीलिए वाटर का जो सस्टेनेबल यूज़ के लिए, जुडिशियस यूज़ के लिए, ऑप्टिमल यूज़ के लिए हम मार्च 22 को एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, in order to give the message that water needs to be conserved, ठीक है, it needs to be used judiciously. So for that we ensure this day 22nd of March जो है उस टाइम पे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, ओशन सर्कुलेशंस। सी, व्हाट आर ओशन सर्कुलेशंस? ओशंस के अंदर ऑलमोस्ट 97.5 और 97.5% ऑफ वाटर है। अब ये वाटर जो है ये स्टैग्नेंट नहीं है, मतलब स्टैटिक नहीं है। इट इज़ मेकिंग डिफरेंट
मूवमेंट्स. सो कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होता है सर्कुलर मैनर पे करने वाला. सो ऑल दीज मूवमेंट्स जो है वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 3 फॉर्म्स. व्हाट आर दे? नंबर 1 वेव्स, जो आप लोग भी देखा होगा अगर बीच या ओशन कुछ विजिट किया है तो यू कैन डेफिनेटली हैव नोटिस्ड द वेव्स. दे आर लाइक समथिंग ऐसे इस तरीके से जाते हैं, ripples. So how waves are generated? Because see oceans में जो भी water है उसके ऊपर जब air wind का movement होता है, the wind is going to have the dragging force on that water. जब ये drag होता है there will be a frictional force. As a result of it energy will be given to that water. That energy starts moving. Actually waves जो है they are not the actual movement of the water. It is in fact the energy that moves. ठीक है, वो भी एक रिपल मैनर पे अप एंड डाउन होकर मूव होता है. So this movement we call them as waves. So simply what is a wave? When the water on the surface of the oceans rises and falls alternatively, they are called waves. Clear? सेकेंड जो मूवमेंट है दैट इज टाइड्स, जिसके बारे में हम थोड़ा सा एलाबोरेटली कवर करेंगे. थर्ड वाला जो है दैट इज ओशियानिक करंट्स. बाकी ये दोनों के बारे में थोड़ा सा एलाबोरेटली यहाँ पर पढ़ेंगे एंड हायर क्लास में उसका मैकेनिज्म वगैरह भी कवर करेंगे. नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ वेव, सी यहाँ पर हैव यू सीन दिस? मतलब ऑफ कोर्स देखा नहीं होगा, मूवीज वगैरह में या न्यूज़पेपर वगैरह में देखा है. दिस इज जनरली व्हाट वी कॉल इट एज, से यहाँ पर एक बड़ा सा सिटी है, वेव, अ बिग वेव विथ enormous height is coming and flooding it. So such waves we call them as, क्या कहते हैं इसको? सुनामी वेव्स. सुनामीज कहते हैं, राइट? सुनामीज. So what is a tsunami? Tsunami is also a kind of a wave जिसको seismic sea wave कहते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक या वोल्केनिक एरप्शन की वजह से होता है. अगर वो समुद्र के अंदर हुआ है that energy will displace the water and the water are going to come in huge waves. This is what we call it as tsunamis. अब ये सुनामीज की वजह से देर इज वाइड स्प्रेड इनंडेशन एंड नुकसान होता है, लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी लॉस होता है. दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द डिजास्टर्स, आपदा है ये. ठीक है. सो वेव्स आर फॉर्म्ड when the wind scraps across the ocean surface and stronger the wind the bigger the wave. क्योंकि जब विंड मूवमेंट होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वेव बन रहा है. अगर विंड स्ट्रांग है ऑब्वियसली द वेव विल बी बिगर. सो दिस इज ऑल अबाउट वेव्स एंड सुनामी वेव्स जो है दीज आर ऑल्सो वन ऑफ सच वेव एनर्जीज. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड टाइड्स. व्हाट इज ए टाइड? व्हाट इज द मैकेनिज्म? सिर्फ इतना तक पढ़ेंगे हम. थोड़ा सा हायर क्लास में इसका टोटल मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर इन 7th क्लास बुक है, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर कवरिंग लाइक दिस. सी व्हाट इज अ टाइड? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियानिक वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड द टाइड. मतलब सपोज से दिस इज ओशन एंड दिस इज लैंड. अब नॉर्मली ओशन का लेवल यहाँ तक है, but sometimes if the ocean level is rising and it is rising till here and sometime oceanic level is falling and it is going to fall till here. ये जो periodic rise and fall जो है, fall of oceanic waters generally roughly twice a day, जो 2 times a day होता है, इसको क्या कहते हैं हम? टाइड कहते हैं. Now what is the reason behind it? What is the mechanism? Reason is simple. See, we have studied about the solar system, the celestial objects, right? So यहाँ पर we have earth. Earth is rotating and it is also revolving around the sun. In the same manner, earth को revolve करते हुए there is another object, a natural satellite
विच इज कॉल्ड द मून। दैट मीन्स अर्थ के ऊपर मून का ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, क्योंकि स्पेस में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है उसके ऊपर ग्रेविटी होता है। सो देयर इज ए ग्रेविटेशनल पुल ऑन दिस अर्थ ड्यू टू मून। सिमिलरली अर्थ के ऊपर जो सन है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं, उसका भी ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। सो व्हेन दिस ग्रेविटेशनल पुल्स, जैसे एक हो गया मून का ग्रेविटेशनल पुल, दूसरा हो गया सन का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, लेट मी फर्स्ट टेक सम एम्प्टी स्लाइड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, देन वी विल कम बैक हियर। वो मैकेनिज्म कवर कर लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, से यहाँ पर लेट्स से दिस इज सन, ओके, देन in the third orbit or so we have earth, थोड़ा सा दूर पे बना रहा हूं मैं, this is earth and here surrounded by the earth we have moon. now अर्थ के ऊपर मून का ग्रेविटेशनल पुल रहेगा, सिमिलरली सन का भी ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सन। सी जब सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है, इट विल ट्राई टू पुल इट टूवर्ड्स द सन, जिसके वजह से यहाँ पर सी अर्थ के ऊपर जो भी वाटर है, बिकॉज अर्थ इज फिल्ड विथ ऑलमोस्ट 71% जो है दैट इज योर ओशंस, 71% जो है ओशंस के साथ फिल्ड है। सो दिस 71% ऑफ द ओशंस जो है, व्हाट हैपेंस इज दिस इज ए फ्लूइड, मतलब वाटर फ्लूइड है, it will try to pull it। so जैसे यहाँ पर सन जो है ये पुल कर रहा है, जिसकी वजह से the face which is facing the sun is going to have a bulge like this, मतलब यहाँ पर जो भी वाटर है that will be pulled towards sun, ऐसे पुल करेगा। बट यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस सन को काउंटर करने के लिए अर्थ का रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज हाउ बैलेंसिंग इज हैपनिंग। वरना तो अर्थ पूरा ऐसे आकर सन के पास चला जाता है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। वो फोर्स क्या करेगा, अर्थ को इस साइड खींचेगा। सो अर्थ को इस साइड खींच रहा है, इस साइड सन खींच रहा है, इस साइड वो पुल खींच रहा है। जब दोनों बैलेंस्ड मैनर पे हैं, दैट्स व्हेन अर्थ इज इन द इक्विलिब्रियम, राइट। सो अब ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, इट इज क्रिएटिंग वन बल्ज। ऐसे बल्ज को हम टाइडल बल्ज कहते हैं, टाइडल बल्ज कहते हैं। दूसरा साइड से देखो, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस साइड भी एक बल्ज क्रिएट हुआ है, एंड दिस बल्ज इज कॉल्ड अगेन टाइडल बल्ज। ऐसे सन के वजह से दो टाइडल बल्जेस बन गया, मतलब एक तो सन की वजह से, दूसरा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। नाउ द सेम इफेक्ट कैन हैपन विथ रेस्पेक्ट टू मून एज वेल। और मून का इफेक्ट जो है वो सन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि मून जो है वो काफी क्लोज है अर्थ का। सो ड्यू टू इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ अर्थ, द मून विल डेवलप और मून विल हैव मोर ग्रेविटेशनल पुल, जिसके वजह से टाइडल बल्ज बनेगा। अब टाइडल बल्ज बन रहा है, इसका मतलब है कि एक जगह पे वाटर जो है वो राइज हो रहा है, यहाँ पर वाटर का लेवल राइज हो जाएगा और यहाँ पर वाटर का लेवल फॉल हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी राइज। सिमिलरली जैसे जैसे रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, ये भी चेंज होता जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि बल्ज जो है ऐसे क्रिएट होगा, यहाँ पर आपको हाई राइज मिलेगा एंड यहाँ पर फॉल मिलेगा। सो इस तरीके से दिन में दो राइजेस एंड दो फॉल्स मिल रहे हैं, दो राइजेस एंड दो फॉल्स। दिस पीरियाडिक
rise and fall of the oceanic waters is called bulge, is called the tidal. See, tides क्या होता है? Tide is the periodic rise and fall of the oceanic waters due to gravitational pull. And this gravitational pull वाला concept जो है वो यहाँ पर समझ में आ रहा है, right? So इस तरीके से when the gravitational pull of moon and sun acts, they create tidal bulges, and that is the reason why there is a fall and rise of these waters. So वो भी एक पीरियाडिक मैनर पे चलता है. So ऐसे पीरियाडिक राइज एंड फॉल को क्या कहते हैं हम? We call them as tides. Clear? Now look at this. See that the same has been shown it here. ये बल्ज जो है, मतलब इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, यहाँ पर देर इज अ बल्ज क्रिएटेड ड्यू टू सन्स ग्रेविटी, सॉरी मून्स ग्रेविटी, एंड यहाँ पर एक बल्ज क्रिएटेड ड्यू टू सन्स ग्रेविटी. अब जब मून यहाँ पर इधर फुल मून पे या न्यू मून पे है, देन व्हाट इज हैपनिंग, ये जो बल्ज है दिस विल बी मैक्सिमम, मतलब ड्यूरिंग फुल मून मतलब पूर्णिमा, एंड ड्यूरिंग न्यू मून मतलब अमावस्या के दिन सन, अर्थ एंड मून तीनों एक ही एक्सिस पे होते हैं, तीनों एक ही एक्सिस पे होते हैं. सो व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑन द सेम एक्सिस, तब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून जो है वो मिलके काम करते हैं, जिसके वजह से ये टाइडल बल्ज जो है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है, मतलब हाईएस्ट टाइड मिलता है उस टाइम पे. ठीक है, जनरली ये टाइड्स को हाई टाइड लो टाइड कहते हैं. जैसे ये राइज कर रहे हैं ना, इसको हाई टाइड बोलते हैं, और ये जो फॉल हो रहा है उसको लो टाइड कहते हैं. क्लियर? हाई टाइड एंड लो टाइड. नाउ ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून, इस टाइम पे सन, मून, अर्थ तीनों एक ही एक्सेस पे रहता है. उस टाइम पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है दैट इज मैक्सिमम, जिसके वजह से जो बल्ज बनता है टाइडल बल्ज दैट इज मैक्सिमम. सो दैट इज व्हेन द राइज ऑफ द वाटर इन द ओशंस विल बी मैक्सिमम. सो एज ए रिजल्ट उस टाइम पे जो हाई टाइड मिलता है इट विल बी द हाईएस्ट वन, एंड ऐसे टाइड को हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं. ठीक है, अगर मैकेनिज्म पूरा समझ नहीं आया तो डोंट वरी, हायर क्लास में और एक और बार रिपीट होगा. ये 11th क्लास में आ जाएगा ज्योग्राफी में, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आएगा. देयर आई विल यूज एनिमेटेड इमेजेस, जहाँ पर एनिमेशन के साथ आई विल शो यू. दैट्स वेयर यू विल गेट इवन फर्दर क्लैरिटी. यहाँ तक पूरा समझ में आया है? इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल इन द बैक ऑफ द माइंड, डोंट वरी, दैट विल आल्सो बी क्लियर्ड. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली जब मतलब न्यू मून फुल मून का टाइम पे, मतलब पूर्णिमा एंड अमावस्या के टाइम पे वी आर हैविंग दी स्प्रिंग टाइड विच इज हाईएस्ट टाइड. इसी तरीके से इस टाइम पे क्या है, तीनों एक ही लाइन पे है, सन, मून, अर्थ. Similarly, see during the third quarter and first quarter of the moon, the sun, moon and earth, all three of them will be in a right angled manner, ऐसे perpendicular manner पे होता है. So जिसके वजह से जो pull है, the gravitational pull जो है, the combined gravitational pull, that will be reduced. That will be reduced. As a result of it, इस टाइम पे जो टाइड मिलता है, लो टाइड पर्टिकुलरली, that will be the lowest tide. ठीक है, इस टाइम पे जो लोवेस्ट टाइड मिलता है, इस लोवेस्ट टाइड को हम क्या कहते हैं? नीप टाइड कहते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज स्प्रिंग टाइड? दिस इज द हाईएस्ट टाइड. कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या पे होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए. सिमिलरली
व्हाट इज नीप टाइड? इट इज द लोएस्ट टाइड। क्यों होता है? क्योंकि सन और मून अर्थ का कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल कम होता है। कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सन एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। इस टाइम पे राइट एंगल पे होता है, दैट इज व्हेन वी गेट दिस। ठीक है, यहाँ तक टाइड्स होता क्या है, उसका मैकेनिज्म, उसमें टाइप्स, ये 3 चीज़ें कवर कर लिया। अब इसका यूजेस क्या है? सी दे हेल्प इन द नेविगेशन। नेविगेशन मतलब मैरीटाइम नेविगेशन, ओशैनिक नेविगेशन। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस हाई टाइड इट इज़ ईजी टू एक्सेस द पोर्ट्स। जो भी बड़े बड़े शिप्स वगैरह जो होता है दे कैन ईजिली एक्सेस दिस ओशंस, क्योंकि ओशैनिक वाटर का हाइट बढ़ चुका है। प्लस दे आल्सो हेल्प इन फिशिंग, क्योंकि जब ये हाई टाइड्स वगैरह आता है बहुत सारे फिशेस वगैरह जो है दे कम इन टू द कोस्ट एंड दे गेट ट्रैप्ड एंड देन इट इज़ ईजी टू कैच देम। देन फर्दर दिस tides is also used to make electricity, and such electricity जो है it is environmental friendly and it is renewable energy। ठीक है, so these are all the advantages of tides। अब पूरा concept समझ में आ गया? tides होता क्या है, बनता कैसे है, इसमें क्या types है, and finally what is the uses। Now the last of the oceanic circulations जो है that is oceanic currents। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके बारे में हम 11th क्लास ज्योग्राफी में डिटेलली पढ़ेंगे। यहाँ पर let us understand what is this oceanic current। See, oceanic currents are streams of water flowing constantly on the oceanic surfaces in a definite direction and definite path। मतलब it's like a river within the ocean, जिसका एक डेफिनेट पाथ है, एक डेफिनेट डायरेक्शन है, उसको क्या कहते हैं? ओशानिक करंट कहते हैं। ठीक है, एंड दीज ओशानिक करंट्स जो है बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर दे आर डिवाइडेड इनटू करंट्स, ओशानिक करंट्स। करंट का मतलब क्या है? करंट का वर्ड कब यूज करते हैं? इफ देयर इज ए मूवमेंट वी सिंपली कॉल इट एज ए करंट। सो ओशानिक वाटर्स के अंदर देयर इज ए मूवमेंट of the waters in a definite path and direction, उसी waters को हम oceanic currents कह रहे हैं। अब उसका टेम्परेचर मतलब वहाँ पर जो waters है oceanic currents के अंदर, उसका टेम्परेचर बेसिस पे we can divide these currents into warm currents and cold currents। वार्म करंट मतलब जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू द कोल्ड। सो दिस इज ए रिलेटिव टर्म्स, वार्म एंड कोल्ड। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड जनरली वार्म करंट्स जो होते हैं दे आर ऑरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास, इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल रीजन के पास सन का वर्टिकल इंसिडेंस होता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए इस रीजन को टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन कहते हैं। डन। एंड यहाँ से जो वार्म वाटर्स है दे जनरेट एंड दे ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द पोल्स, ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा। यू कैन नोटिस इट हियर, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ओशियनिक करंट्स। दिस इमेज आई हैव टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। देखो यहाँ से जो भी जनरेट हो रहा है ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, यहाँ पर जो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। एंड सिमिलरली ये भी ऐसे ऐसे। एंड सिमिलरली दोज विच आर जनरेटेड एट द पोल्स दे ट्राई टू कम टूवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड्स। मतलब यहाँ से जो जनरेट हुआ है वो ऐसे आने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, यू कैन सी दिस, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। सो इसका जनरल मूवमेंट कैसे होता है? इक्वेटर से पोल की तरफ वार्म वाटर्स एंड पोल से इक्वेटर की तरफ कोल्ड वाटर्स होते हैं। दिस इज द जनरल मूवमेंट्स। कंसेप्ट क्लियर? फर्दर
See, the areas where warm and cold currents meet, they provide best fishing grounds of the world. ठीक है, what is the reason and all we will see elaborately in the higher class, but यहाँ पर देखो warm oceanic current and cold oceanic current आ रहा है. See, warm current मतलब इसमें जो भी वाटर है गर्म है, दे आर एक्सपैंडेड. ये एक्सपैंड हुआ है मतलब ये लाइट है, हल्का है. बट कोल्ड करंट जो है ये इसका टेम्परेचर कम है, मतलब ये भारी है, डेंस है. सो बोथ ऑफ देम व्हेन दे मीट, ये कोल्ड करंट जो है ये नीचे रहेगा, वार्म करंट ऐसे ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से देर इज ए इंटरमिक्सिंग एंड ओशनिक बॉटम से मतलब नीचे से देर इज अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स जो है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा. अब ऊपर आ गया न्यूट्रिएंट्स और ऊपर सरफेस के ऊपर यू हैव सनलाइट. सो सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स दोनों अवेलेबल है, तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन करके कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो समुंदर में खाना बनाते हैं फॉर अदर फिशेस. सो उनका प्रोडक्शन अच्छे से होता है. जब ये फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ अच्छा होता है, सो दैट विल बी ईटन बाय स्मॉल फिशेस एंड स्मॉल फिशेस विल बी ईटन बाय ए बिग फिशेस. सो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर खाना मिल रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई इन दीज लोकेशंस जहाँ पर वार्म करंट एंड कोल्ड करंट दोनों मिक्स हो रहा है, तो वहाँ पर फिश प्रोडक्शन अच्छे से होता है. दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स. ठीक है, अब बताइए ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओशनिक करंट होता क्या है और उसमें टाइप्स क्या है, वार्म एंड कोल्ड करंट, एंड कैसे उनका जनरल सर्कुलेशन होता है, एंड देन जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है. ये सारी चीज़ें क्लियर है. सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इसके साथ हमारा एक और चैप्टर which is water is done. See, immediately after this session there is a practice test with multiple choice questions. Please take the test, try to check your understanding levels. अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होता है, if you are not able to get anything, I'm available, you can ask me at any time. That's it for this particular session. Thank you very much. See you in the next session with the continuation of the topics. Till then, take care. Bye everyone.